अथाह अगणत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। अगम अगोचर, अगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व संजीवालता दे पैगंबर दीन ते दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रह पर गुरता गद्दी ते सुभाईमान हालत पलत के रखियक धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपर अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई जिथे हर रोज़ गुरु दरबार दियाँ हाज़रियाँ भर के अपना जीवन सफल करते हो, अज विशेष तौर पर धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश गुरपुरब नूं मुख रखते हुए जो विशेष प्रोग्राम उलीके गए ने, जिस विच आप जी गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना विखे गुरु घर हाज़रियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। वडभागे हो, धनता दे योग हो। सतगुरां दी रब्बी बख्शिश दे पात्र बने, बहुत ही प्यार सत्कार नाल आप सरबत संगतां ने हजूरी रागी जथे दी पावन रसना तो इलाही गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। जीवन जिंदगी दियां घड़ियां पलों नूं सफल कीता है। उत्तम कर्मां दी बात है। आओ इस पावन स्थान की मर्यादा मुताबक जो समा सानू कथा के राही गुरमत विचारां इतिहासक विचारां की सांझ पाउण लई प्राप्त होया है, इस समय नूं गुरु की बात पा के होर भी वडभागा बनाउण दा यतन करिए। अज ਆਪਾਂ ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब संबंधी ही विचारां करनियां ने। सतगुरु कृपा करन आप संगत ने असीस देनी कि इस पावन पवित्र माणमते इतिहास नूं असी गुरमत की रोशनी च विचार सकीए, समझ सकीए और इन्नी बारीकी दे नाल समझण दा यतन करांगे ताकि मुद्दतां ताईं जे कोई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नाल छेड़छाड़ करे, सानू इन्ना क एहसास होवे, इन्ना क पता होवे कि जो ये कोई गलत कर रहा तो सानू असी उन्होंने रोक सकीए, टोक सकीए, क्योंकि सानू पता है, असी सुनिया है, असी पढ़िया है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना किवें हुई, किवें पातशाह ने तरतीब दी, किवें तत्करा बनाया, किवें रागां की तरतीब है।
ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣੀਏ ਉਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਉਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਬੀੜ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧਕੀ। ਇਸ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪੁਰਾਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ
उचारी गई, लिखी गई, भगवत गीता उचारी गई, लिखी गई, रामायण उचारी गई, लिखी गई। ये देश की खूबसूरती है। इत्थे इन्ने रब्बी अवतारी पुरुष आए, उन्होंने रब्बी इल्हाम अपनी रसना तो बोले, जो परमात्मा वालों पैगाम आया दुनिया नूं पढ़ के सुनाया और उन्हां दे पैरोकारां ने लिख दिता। हुण फर्क की है? ब्रह्मा जी ने 4 वेद उचारे, कोई शक नहीं, लेकिन उन्हां दे जाण तो 4000 साल बाद वेद लिखे गए। उचारण तो 4000 साल बाद वेद लिखे जाते हैं। गीता का उचारण होया भगवान कृष्ण जी महाराज के शरीरक चोला त्यागण तो बाद तकरीबन 200-250 साल बाद गीता लिखी जाती है। यीशु ने बाइबल उचारी, उन्होंने जान तो तकरीबन 200-300 साल बाद बाइबल लिखी जाती है। महात्मा बुद्ध ने रबी बोल उचारे, उन्होंने जान तो 6 महीने बाद उन्होंने बोल एकत्र किए जाते हैं। जिन्ने भी अवतारी पुरुष आए रबी बोल इन्हों ने कहे। हज़रत मुहम्मद साहब ने कुरान शरीफ जो उन्होंने परमात्मा वालों इल्हाम होया उन्होंने उचारिया, उन्होंने जान तो बाद कुरान शरीफ, कुरान मजीद पाक पवित्र उन्होंने लिखिया जाता है। उन्हों की हयाती विच नहीं, उन्हों के जीवन काल विच नहीं, उन्हों के हुंदियां नहीं लिखिया गया, ना ही उन्होंने कोल बैठ के लिखाया गया। जान तो बाद जिन्ना कि किसी को याद सी लिख दिता, एक दूसरे तो पुछ के लिखिया गया। और एक गल तो तुसीं समझदे हो, जुबानी गल किन्नी क याद रह जाती आपां नूं। तुसीं किसी को सुनेहा देना होवे भी आ मेरा सुनेहा फलाने नूं ला दिओ, जे उस गल नूं 2-4 महीने लंघ गए तो तुसी इन बिन हू बहू उवें दे अल्फाज अगले नूं नहीं दस सकोगे। जे 2-4-6 महीने लंघ गए तुहाडी गल विच किते ना किते फर्क आएगा। जो जिवें किसी ने कहा कुछ गल्लां तुसी भुल गए, कुछ कह दित्तियां, कुछ अपने कोलों जोड़ दित्तियां, ते अगे उन्हें किसी को सुनेहा देना होया, मान लो एक गल 10 बंदियां कोल सुनेहा देना, 10 तक 10वें बंदे तक जाते जाते वो गल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। किसी को तुसी ओही शब्द चिट्ठी दे विच लिख के दे दो, अखरां दा जामा पहना के दे दो, भावें 100 बंदे कोल चले जावे, भावें 1000 बंदे कोल चले जावे, वो अखर जिहड़े तुसी लिख के दे दिते, आप लिख के सुनेहा भेज दिता, वो अखरां ने कदे नहीं बदलना। वो भावें लख बंदा भी उन्होंने पढ़ लए, जिवें तुसी भेजिया हू बहू सारियां कोल जाएगा। वक्त आया धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह दा, महाराज ने आला दुआला देखिया, दुनिया का वरतारा देखिया। ब्राह्मण नावे जियां खाए, जोगी जुगत न जाने अंध, कादी कूड़ बोल मल खाए। ब्राह्मण नावे जियां खाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। मैं ये भी गल स्पष्ट कर दिया, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं किसी काजी तो नफरत नहीं, धन श्री गुरु नानक देव पातशाह नूं किसी ब्राह्मण तो नफरत नहीं, बल्कि 15 ब्राह्मणों की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब 11 पट ब्राह्मण ने, भगत रामानंद जी, भगत परमानंद जी, भगत बेणी जी, भगत जयदेव जी ब्राह्मण ने। जे नफरत होंदी बाणी क्यों होंदी? किसी काजी तो भी नफरत नहीं। पातशाह ने तो इन्ना ही कहा, काजी तेरी पोस्ट बड़ी सत्कारयोग है, तेनों जस्टिस की निगाह नाल वेख्या जाता है कि इत्थों मैनूं इंसाफ मिलेगा। जे तू विक गया, जे इंसाफ ही विक गया, फिर लोग कित्थे जाणगे? अपनी जिम्मेवारी का, अपनी पोस्ट का एहसास कर, लोग तेरे ते रब तरह विश्वास करते हैं। ब्राह्मण नूं भी यही क्या, ब्राह्मण के अर्थ ने जिन्हें ब्रह्म नूं पछाण लिया। ब्रह्म की है? परमात्मा। ब्रह्म बिंदे, जिन्हें ब्रह्म नूं बिंद लिया, पछाण लिया, ब्रह्म की सोझी हो गई, ब्रह्म नूं वेख लिया, ब्रह्म नूं माणिया, वो असल विच ब्राह्मण है। जात करके जदों इत्थे गल आई, जात करके तो किते किते पातशाह ने जिक्र किया, नहीं तो जिन्हां दी ब्रह्म नाल सांझ पई उन्हां दा जिक्र है। जदों पंडित शब्द आया वो एक विद्वान वास्ते आया। धन गुरु नानक देव पातशाह आए, अज पहली बार दुनिया ते एक क्रांतिकारी विचारधारा का भी जन्म होया। गुरु नानक साहब के प्रकाश नाल जिथे सिक्खी का प्रकाश होया,
एक नवेकली एक वखरी विचारधारा का प्रकाश, उत्थे एक क्रांतिकारी विचारधारा का प्रकाश होया। सवेर पर्वत ते सतगुरु जाते हैं, सिद्धा जोगियां नाल एक लंबी वार्ता हुंदी है। जिन्नियां भी सिद्ध गोष्ठियां होईयां ने ओ सिद्ध गोष्ठ बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज हो गई। 114 सवाल किए उन्होंने, 114 सवाल बड़े उच्च पाए दे सवाल ने, पर सामने जवाब धन गुरु नानक देव पातशाह दे रहे हैं। किन्ने उच्च पाए दे सवाल ते जवाब होए होणगे जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब विच जगह मिल गई। सिद्ध गोष्ठ उस बाणी का नाम है। अज सिद्धा ने पूछया कवन आरंभ कवन मत वेला। धन गुरु नानक साहब नूं सवाल है, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, तेरा गुरु कौन है बई जिहदा तू चेला, किहनूं गुरु धारण कीता। साडे तां गुरु आ दे, कोई गोरखनाथ नूं गुरु मान रहा है, कोई किसे नूं मान रहा, कोई किसे नूं मान रहा, तेरा गुरु कौन। अज आ पहली दफा जोगियां ने सुनिया ते पहली दफा ही अज संसार दे लोकां ने सुनना है। मैनूं लगदा पहली वार सी जदों सारे धर्म दे अवतारी पुरुष ये गल सुनन लगे ने। गल बड़ी नवेकली सी। महाराज कहंदे पवन आरंभ सतगुर मत वेला। सुनियो मेरा गुरु कौन है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। आ अज नवी गल सी, क्योंकि हुण तक क्या सी गुर ब्राह्मण थिया। अज तक लोग ये सुनते सन कि ब्राह्मण हिंदू धर्म में जन्म लैण वालियां वास्ते ब्राह्मण गुरु है, इस्लाम धर्म वालियां वास्ते उन्हां दे अपने पीर फकीर ने, सारे धर्मां दी अपनी मान मर्यादा है। अज गुरु नानक साहब ने दुनिया वालियां नूं क्या मेरा गुरु शब्द है। शब्द गुरु क्यों? क्योंकि परमात्मा नूं भी शब्द की लोड़ पई। परमात्मा ने जदों संसार की उत्पत्ति की ना, उदों शब्दां की लोड़ पई। असी जपजी साहब च पढ़दे कीता पसाओ एको कवाओ। कवाओ का अर्थ हुंदा बचन, शब्द, अखर। एक बचन बोलिया कुन, इको ही शब्द दे नाल सारा पसारा हो गया। जे शब्दां की लोड़ परमात्मा नूं पई ते महाराज कहंदे मेरा तो गुरु ही शब्द है, ते शब्द ने कदे मरना नहीं, शब्द ने कदे खत्म नहीं होना। शब्द नूं किसे टैची विच पा के लिजाण दी लोड़ नहीं, शब्द नूं किसे विजयां दी लोड़ नहीं। शब्द तां गुर मेरा संग सदा के नाले। धन गुरु नानक देव पातशाह ने कहा मेरा गुरु शब्द। सारे बड़े हैरान हुए, सुनने वाले भी, ये गल की हुई। असी तो पहली बार सुन रहे हैं भी शब्द भी गुरु हुंदा है। असी तो शरीरां नूं गुरु मन्निया, असी तो देहां नूं गुरु मन्निया, असी तो सामने जिहड़ा व्यक्ति खड़ा होवे ओनूं गुरु मन्निया, ते तुसीं शब्द गुरु कह रहे हो। मारे कहंदे हाँ शब्द गुरु है। शब्द जुगो जुग अटल अगवाई करेगा ते करदा रह सकदा है। शब्द कदे मरदा नहीं, कदे खत्म नहीं हुंदा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह दा वक्त आया। सिखां ने पुछया महाराज गुरु कौन? बचन गुरु रामदास महाराज दिया। पर अज संपादना वेले सिखां दे एक दो सवाल मन विच सन, वो पुछे कहंदे गुरु कौन? पातशाह कहंदे बाणी गुरु। गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु ने सतारे। वक्त आया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दा। सिखां ने पुछया महाराज तुसीं सचखंड चलियो, साडा गुरु कौन? साडा गुरु कौन? सारे गुरु साहबान ज्योति जो समाउण तो पहला सानू गुरु की बांह फड़ा के जाते रहे आ। गुरु नानक साहब गए, गुरु अंगद देव पातशाह के चरणों नाल जुड़ गए। गुरु अंगद देव पातशाह ज्योति जो समाउण लगे, गुरु अमरदास महाराज के चरणों नाल जुड़ गए। गुरु अमरदास पातशाह गुरु रामदास पातशाह के चरणों नाल जुड़ गए। गुरु रामदास महाराज ने ज्योति जोत समाउण तो पहला धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे लड़ लाया। गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर जान लग्या सारी संगत नूं कह गए भाई अज तो बाद तुहाडा गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब है। गुरु हरगोबिंद साहब ज्योति जो समाउंदे आ ते गुरता गद्दी गुरु हर राय साहब नूं दिंदे आ। गुरु हर राय साहब गुरु हरकृष्ण साहब नूं गुरता गद्दी दिंदे आ। गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह ने चलो गुरु आप नहीं चुन के दिता, लेकिन इशारा वड्डा कर गए सन। बाबा बसह जै ग्राम बकाले, बाबा जिहड़ा है जिहदे विच गुरु नानक दी जोत हुण जाके प्रवेश करेगी वो बकाले दी धरती ते है। धन गुरु तेग बहादुर साहब बाबे मक्खण शाह लुबाणे ने प्रगट किया। वक्त आया गुरु तेग बहादुर साहब तिलक जंजू दे राखे बन के दिल्ली वाल नूं तुरन लगे आ। तुरन तो पहला गुरता गद्दी दी अरदास, गुरता गद्दी दा तिलक, अपनी जोत धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह विच टिका दिंदे आ। अज गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ज्योति जो समाउण लगे, सिख पुछ रहा महाराज हुण साडा गुरु कौन? हुण सुनियो शब्द गुरु।
सुरत तुन चेला, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। आ हुण तीजी वार गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहन लग्या, आग्या भई अकाल की, तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ नूं भाई गुरु मनना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दे विच शब्द है। शब्द नूं बाणी कहा जांदा, बाणी नूं शब्द कहा जांदा। ये ओही शब्द है जिन्हों गुरु नानक साहब ने कहा, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। एक विलक्षण बात होर सुनियो, महाराज ने यह नवेकली विचार दी कि शब्द गुरु है। अज तक किसी अवतार ने, अवतारी पुरुष ने नहीं सीखिया। सारे पैगंबर आए, किसी ने शब्द नूं गुरु ना मन्निया, ना दुनिया विच ऐलान किया। चलो इस्लाम धर्म किते ना किते शब्द के नेड़े तेड़े घूमदा, पर उन्होंने बड़ियां लिमिटेड जियां जेड़े दायरे तय कर दिते। वो कहते 99 नाम परमात्मा दे ने, ते 7 पताल ने, ते 7 आकाश ने, 7वें आसमान विच परमात्मा खुदा रहिंदा है। जां उन्हां दा मनना यह है कि मक्के दी धरती ते खुदा रहिंदा है। धन गुरु नानक साहब कहते नहीं, परमात्मा सर्व जगह व्यापक है। 7 पतालों ते 7 आकाशों की तो गल नहीं, 7 पताल ते 7 आकाश तो बड़ी छोटी गल है। इत्थे पाताला पाताल, लख आकाशा आकाश, जिन्हों ने लख पताल ते आकाश गए, मारे कहते तुसी भी गल छोटी कर गए। अणगिणती है इहो जे पताल आकाश का पता ही नहीं किन्ने कने, जिन्हों की गिणती नहीं हो सकती। गुरु नानक साहब ने आड़ा अगेतर ला के असंख जप, असंख पाओ, असंख नाव, असंख थाव, गिणती तो बाहर गल्लां कर दित्तियां कि परमात्मा की कुदरत का कोई अंत नहीं, उहदा अंत किवें पाया जाएगा। सारे अवतारी पुरुषों ने अपने रब्बी बोल बोले, लेकिन लिखना जरूरी नहीं समझिया। बोल बोले ते चले गए। उन्हां दे पैरोकार सेवादारां ने एक दूजे नूं पुछ पुछ के उन्हां दे बचन होंद विच लिआंदे, पर गुरु नानक साहब ने इवें नहीं कीता। गुरु नानक साहब तो पहला कुछ भगत भी आए ने। बाबा फरीद साहब 1173 विच प्रकाश है। भगत जयदेव जी वेस्ट बंगाल दे, उन्हां दा जिहड़ा प्रकाश जन्म हुंदा है 1170 विच है। 300 साल पहला भगत आउंदे ने। इन्हां ने शब्द उचारिया। चलो भगत जयदेव जी का भावें एको ही पता है, उचारिया, लिखिया गया और उन्हां दे इलाके तक सीमित है। दुनिया को कोई पता नहीं भगत जयदेव कौन है तो उन्हां दे बोल की कहते हैं। बाबा फरीद साहब ने अपने श्लोक उचारे, दुनिया को कोई पता नहीं कि बाबा फरीद साहब कौन है तो उन्हां दे बोल की कहते हैं। उन्हां दे इलाके ते उन्हां दे डेरियां तक उन्हां दे बोल सीमित हो गए। अज गुरु नानक साहब दे पर उपकार वेखदे जाओ ते मन ही मन विच शुकराना भी करते जाओ, क्योंकि धन गुरु नानक दे पातशाह दे जिहड़े मनुखता ते पर उपकार ने। मैं कल्ले सिख नहीं कह रहा, मनुखता कह रहा, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहब मनुखता का गुरु है। भाई गुरदास साहब ने गल मोहर ला के कह दी, जाहर पीर जगत गुरु बाबा। गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक भाई पूरे जगत संसार का गुरु है। इसे करके तो असीं कहने ना, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्ना को साझा। इत्थे सभे सांझी वाल सदायन तो कोई ना दिसै बाहरा जियो। इत्थे सारियां नूं इक्को ही संगत, इक्को पंगत, एक सरोवर, एक बाणी, इक्को ही है। इत्थे सारा कुछ वखरेवा तो है ही कोई नहीं है। बदकिस्मती है साडी और बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है, कुछ गुरु घर अज साडे विच खै ने किते ना किते, जिथे लंगर विच वड़न लग्गियां जात पुछी जाती है, किहड़ी जात दा है। जे उहदे अखौती जे किसी नीवीं जात का नाम लै दिता, जिन्हों गुरमत मनदी नहीं, उहदे लई कह जांदा भी अड भांडे ते अड पंगत है तेरे लई। उन्हां नाल पिछे हथ करके, जिवें किसी तो नफरत करदे ना, वो पिछे हथ करके गल करदे और दूर खड़ के गल करदे, किते परछावां ना पवे तो यह साढ़े नेड़े ना हो जाए। गुरु नानक साहब का यह तो सिद्धांत है ही नहीं। महाराज ने भाई मरदाने नूं नाल रखिया। मरदाना कहता सी, बाबा तू खत्रियां दा लड़का, तू पटवारियां दा लड़का, लोग तेरी जायदाद विच भी मैं तेरे किसी मुकाबले विच नहीं। मैं एक डूम मिरासी, लोग मैनू बड़े माड़े शब्दां नाल बोलदे आ, तेरी मेरी सांझ किवें बनेगी? लोगों ने बननी नहीं देनी, किवें सांझ बनेगी? गुरु नानक साहब कहते लोगों की छड्ड, बस मैं तेनों अपना भरा बना लिया, हुण तां तू मेरे नाल ही रहेगा। भरा बना के रखिया गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं, और 54 साल भाई मरदाना नाल रहा। दुनिया नूं एक गल दा नाल नाल स्नेहा दे रहा, मेरे घर विच जात पात हावी नहीं हो सकती। मैं तां बल्कि नीचा अंदर नीच जात,
नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। मेरी तां भाई निभदी गरीबां नाल है, मेरी तां निभदी इहो जे लोकां नाल है। जदों सुल्तानपुर मेहता कल्याण दास आए ना कि पुੱਤ पैसे किन्ने क कमा ले, किसी शाहूकार कोल रख दई दिया जे पैसे ज़्यादा होण तूं मोदी खाने की नौकरी अज दा फाइनांस मिनिस्टर मुताबिक सी, अज दा खजाना मंत्री होवे ते मोदी खाना होवे, ये दोवां दी पोस्ट किन्ना पैसा दान प्रदान होंदा होएगा। कहण लगे पुੱਤ पैसे बड़े जमा कराए होणगे, कित्थे जमा कीते आ? कहण लगे पिता जी शाहूकार कोल ही रखे हुए आ। कहंदे चल फिर मैं लैके जाने तेरी माँ नूं दवांगा, बड़ी खुश होएगी, क्योंकि माँ नूं उस दिन बड़ी वड्डी खुशी हुंदी है जदों पुੱਤ अपनी कमाई लिया के माँ की थली ते रखदा है, बड़ी खुशी हुंदी है। मैं तेरी माँ नूं दवांगा, बड़ा खुश होएगी। बाबा नानक गुरु नानक साहब कहते चलो पिता जी तुहानूं मैं अज अपने शाहूकार भी मिला दियां, तुहानूं अज अपनियां बैंकां भी दिखा दियां, मैं पैसे कित्थे जमा करदा। गरीबां दी बस्ती विच लै गए, जिथे झुग्गियां झोंपड़ियां विच गरीब लोग रह रहे आ, जिन्हां नूं हुण तक ना कदे किसी ने पूरा तोल के दिता है। उन्हां तो टैक्स पूरा लिया जांदा पर राशन पूरा नहीं सी दिता जांदा। उन्हां दे घरे कदे 2 वक्त रोटी नहीं सी पकदी। जदों दे गुरु नानक साहब आए 2 वक्त प्रशादा रज के छकन लग पे। उन्हां दा पूरा पूरा जिन्हों 13 कहे ना 13 तोलिया, 13 नहीं 13 होण सिखाया सी, ते उस दिन तो रज के रोटी खाण लग पे। जदों उस वेड़े उस महल्ले दे विच बड़े मेहता कल्याण दास दे उपर लोग फुल सिट रहे आ, कोई पैरां नूं हथ ला रहा है, कोई धन धन कह रहा। मेहता कल्याण दास तू धन, तेरा पुੱਤ धन, जिद्दे दा साडे ए सुल्तानपुर विच आया साडे बच्चे रज के रोटी खा रहे आ, साडे बच्चे रज के खा रहे आ, असी सुख दी नींद सौ रहे आ। सानू इउं लगदा जिवें रब साडी मदद ते उतर आया होवे। मेहता कल्याण दास बड़ा हैरान हो रहा, नाल नाल परमात्मा दा धन्नवाद भी निकल रहा। गुरु नानक साहब कहंदे पिता जी वेख ले मेरे शाहूकार, इन्हां कोल पैसा जमा कराया होया मैं। तां ही गुरु नानक साहब कहंदे आ भाई सिखा, मैं तां 100 दे विचों 90 लोड़वंदां च वंडदा, 10 अपने कोल रखदा। चल मैं तैनूं छुट्टी दित्ती, तू 90 अपने कोल रख ला, 10 तां वंड दिया कर, जिन्हों दसवंध कहा जाता है। दसवंध तां कढ दे ना, मैं तां 90 हिस्से वंडे आ, 10वां कोल रखिया ते तैनूं मैं सौखा कर चलिया, तू 10वां हिस्सा कढ ला, 9 अपने कोल रख ला। कहण तो भाव इत्थे गरीब नवाजां दा घर है, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरै। अज धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जिन्ना तो उन्हां समयां च लोकां ने जाति नफरत कीती, एक गरीब गरीब करके दुरकारिया, अज सारी चवर ते छतर तख्त दे मालक बने बैठे। ये गुरु नानक साहब दा परोपकार है। धन गुरु नानक दे पातशाह जिथे जिथे जांदे आ, परथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है। जिहो जिहा सामने कोई वरतारा वरतदा है, वक्त आउंदा है, कोई समा आउंदा है, जदों मारे कहंदे मरदानिया रवाब छेड़ काई सिफत खुदा दे दीदार दी करिए। रवाब छेड़ बाणी आई है, बाणी हर वेले नहीं आउंदी। जे हर वेले बाणी आउंदी हुंदी जां हर गल बाणी हुंदी ते गुरु नानक साहब तां कई वार गल्लां मां नाल भी करदे आ, कई वार गल्लां अपने पिता नाल भी करदे आ, कई वार आम गल्लां भाई मरदाना जी नाल करदे आ, कई वार आम गल्लां भाईया जय राम नाल बेबे नानकी नाल करदे आ, कई वार आम गल्लां भाई भगीरथ भाई मन सुखोणा नाल भी कीतियां होणगीਆਂ, पर वो सारियां गुरु ग्रंथ साहब च लिखियां होणीਆਂ सी। एक वेला आउंदा, एक वक्त आउंदा है जदों महाराज कहंदे रवाब छेड़ बाणी आई है, उदों फिर भाई मरदाना रवाब छेड़दा है, राग पुछदा है, उस राग नूं अलापदा है, उस राग विच शब्द गाया जाता है। धन गुरु नानक साहब पातशाह हुण 3 काम करन लगे आ। पहली गल तां बाणी आई, बाणी नूं उचार रहे आ, दूसरा उन्हों राग दे विच रख के गा रहे आ, ते हुण तीसरा वड्डा महान पर उपकार जिहड़ा करन लगे आ, जो उचारिया जो गाया उन्होंने नाल नाल लिख भी रहे आ, उन्होंने लिख भी रहे नाल नाल। भाई सैदो कहों वर्गे, भाई भगीरथ भाई मनसुख वर्गे ये गुरसिख बाणी नूं लिखदे आ, ते ओ बाणी जिहड़ी गुरु नानक साहब ने अपने जीवन काल विच उचारी, जिन्ने शब्द उचारे एक पोथी बन गई, जिन्हों भाई गुरदास साहब ने कहा पुछण फोल किताब नूं, किताब भी क्या वो पोथी हर वेले कोल रहिंदी है, क्योंकि पता नहीं कित्थे बाणी ने आउणा है, उचारी जानी आ, राग विच रख के गाई जानी आ, ते नाल नाल लिखिया जाना। इस तो पहला कदे एक एवें किसी ने कीता नहीं कि जो वो रब्बी बोल बोल रहे होण ते नाल लिख के भी चले जाण।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। पर गुरु नानक साहब ने एक गल किसी भरोसे नहीं छड्डी, आप ही उचारिया ते आप ही उन्होंने लिखिया। महाराज शायद जानते सन कि कल वक्त इहो जिहा आउणा है, मैं जिस शब्द नूं गुरु बना के जाना है, जिस शब्द नूं तख्त ते जुगो जुग अटल थाप के जाना है, कल उस शब्द ते भी लोगों ने हमले करने आ, उस शब्द नूं पाड़न दी कोशिश करनी है। मैं शब्द ही इन्ना गहराई विच लिख जाना है, इन्ना पक्के रूप विच लिख जाना ते पाड़न वाले वालिਆਂ ਨੂੰ भी समझ नहीं आउणी कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ गुरु ग्रंथ साहब पाड़ के भी वेख लिया, पर गुरु ग्रंथ साहब अज भी जुगो जुग अटल है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ पाड़ के भी वेख लिया, ये तो अज भी जुगो जुग अटल है, क्योंकि गुरु नानक साहब ने इसे करके शब्द नूं गुरु बनाया। गुरु ग्रंथ साहब के आकार नूं कोई पाड़ सकता है, शब्द नूं कौन पढ़ेगा? शब्द नूं कौन पढ़ेगा? भाई मती दास वर्गियां दे शरीर नूं कोई दुफाड़ कर सकता है, ਉਹਦੇ अंदर चल रहे जपजी साहब नूं कौन दुफाड़ करे? भाई मनी सिंह का कोई बंद कट सकता है, ਉਹਦੇ अंदर चल रहे जपजी साहब का बंद कौन कटे? कौन कटेगा? भाई सुवेग सिंह उन्होंने चरखड़ियां ते चढ़ा के शरीर रूह के तुम्बिया तरह कोई उड़ा सकता है, पर उन्होंने दे अंदर वसे हुए जपजी साहब नूं तुम्बा तुम्बा करके कौन उड़ावे? यही तो सिक्खी के दुश्मनों नूं गल हले तक समझ नहीं आई। अज भी किते ना किते वो ये गलतियां कर जाते आ, उन्होंने ये नहीं समझ भी इन्हां दा तां गुरु शब्द है, शब्द नूं असीं किवें मारांगे? किहड़ी तोप दे गोले नाल शब्द नूं मारोगे? साडा अकाल तख्त साहब ढा सकते हो, हरमंदर साहब तुसीं ढा सकते हो, सिखां दे शरीरक आकार नूं तुसीं मार सकते हो, गुरु घरां नूं ढा सकते हो, ईवन कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेअदबियां करके भी वेख लिया कि जपजी साहब नूं कोई फर्क पिया? 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहब के एक एक शब्द, 15 भगत, 11 भट्ट, 6 गुरु, 4 सिख बैठे आ कि उन्होंने फर्क पिया? वो शब्द अज भी जुगो जुग अटल ने। एक गल नहीं उन्होंने समझ आ रही कि असी पाप कमा के आपदे जीवन च पापां दी पंड भारी कर रहे हैं, गुरु शब्द और गुरु ग्रंथ साहब नूं कोई फर्क नहीं पैना इहदे नाल। ये गुरु नानक साहब का परोपकार है साडे ते। अज पहला प्रकाश है, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का तरतीब कित्थों चल रही है। गुरु नानक साहब एक एक शब्द उचारते आ, गाउंदे आ राग विच ते उन्होंने लिखिया जाता है। अज समा आया बाबा लैणा जी गुरु बन लगे आ, तख्त ते बैठन लगे। करतारपुर साहब की धरती ते गुरता गद्दी दिती गई। धन गुरु नानक देव पातशाह ने सिख रहत मर्यादा झोली च पाई, बचन सानू पढ़ा दिते, सिखा दिते, ते नाल एक बाणी दी पोथी झोली, जो अपनी बाणी आ वो बाणी झोली दे विच वो पोथी पा दिती। और याद रखना, गुरु अंगद देव पातशाह जदों गुरु बने, धन गुरु नानक साहब ने कोई बचन किया सी, महाराज तुसी करतारपुर छड्ड दिओ, खंडूर साहब चले जाओ। खंडूर साहब नूं तुरन लगे ने। करतारपुर साहब तो एक कोई कौली नहीं चक्की, कोई चमचा नहीं चक्या, कोई गिलास नहीं चक्या, कोई थाल नहीं चक्या, कोई बिस्तरा नहीं चक्या, कोई कपड़ा नहीं चक्या, कोई माया भी नहीं चक्की। एक कोई चीज़ नाल लैके तुरिया, वो धन गुरु नानक साहब का शब्द सी, क्योंकि शब्द ने गुरु बनना है। देखो किड्डी संजीदगी है गुरु साहब की। महाराज नूं पता माया ने भी आ जाना है, पदार्थां ने भी आ जाना है, किते शब्द इधर उधर हो गया, ये कित्थों आउणगे? गुरु अंगद देव पातशाह ने 63 श्लोक उचारे, पोथी बन गई। धन गुरु अमरदास पातशाह तख्त ते विराजमान होए, जिथे बड़ा कुछ उन्हां दी झोली विच पाया गया। एक दैवी अदृष्ट ताकतां, अदृष्ट गुण, दैवी गुण उन्हां दी झोली च पाए गए। निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, इहो जिहियां बख्शिशां एक बचन रूप विच दित्तियां गईयां। उत्थे गुरु अंगद देव पातशाह ने खंडूर साहब दी धरती ते विराजमान सन, गुरता गद्दी दे के दोवें पोथियां, एक अपनी बाणी वाली पोथी, एक गुरु नानक साहब दी बाणी वाली पोथी, वो दोवें पोथियां गुरु अमरदास साहब दी झोली च पा दित्तियां। ते नाल बचन किया सी, खंडूर साहब छड्ड जाओ, गोविंदवाल साहब चले जाओ। हुण गुरु अमरदास पातशाह गोविंदवाल साहब जान लगे आ, कुछ भी नहीं चकते इत्थों, कोई चीज़ नहीं नाल चक्की, जो तन ते बस्तर पाए ने उही पाए ने, बस नाल जेड़े गुरसिख तुरे उही तुरे ने, ते शब्द नाल लैके गए आ। गुरु नानक साहब दी बाणी दी पोथी नाल लैके गए आ, गुरु अंगद देव पातशाह दी बाणी दी पोथी नाल लैके गए आ। महाराज कहंदे कल इसे शब्द ने कौम दी, दुनिया दी, मानवता दी अगवाई करनी है, किते शब्द ना इधर उधर हो जाण। किड्डी संजीदगी है। गुरु अमरदास पातशाह 22 साल गुरता गद्दी ते विराजमान रहे। बाबा जेठा जी की 22 साल सेवा करके पास हुए।
अज वक्त आया सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास पातशाह नूं तख्त ते बिठाउण लग्या जिथे दैवी गुण झोली विच पाए बड़ा कुछ झोली विच पाया गया उत्थे गुरु अमरदास महाराज दे 885 शब्दां वाली अपनी पोथी बन गई। गुरु अंगद देव पातशाह दी बाणी पोथी, गुरु नानक साहब वाली बाणी दी 3 पोथियां गुरु रामदास पातशाह दी झोली विच पा के समर्पित कर दित्तियां ते नाल ही बचन कीता सी अमृतसर चले जाओ। बाबा जेठा गुरु रामदास बन गए। अज अमृतसर जान लग्या कुछ भी नहीं चक्या, गोंदवाल साहब तो कुछ नहीं चक्या, 3 गुरु साहिबाना दियां पोथियां नाल लेके तुरिया। अज गुरु रामदास पातशाह 7 साल के करीब गुरता गद्दी ते असीम रहंदे ने। 647 दे शब्द उन्हां दे बाणी दे विच अंगत ने। एक उन्हां दी अपनी पोथी बन गई। मैं संखेप मात्र बेनतियां कर रहा, आपां पहले प्रकाश ते होना, समा बड़ा सीमा च है। गुरु रामदास पातशाह दी बाणी दी एक पोथी बनी। 7 सालां विच जो शब्द आए उहदे विच लावां भी आईयां। 30 राग गुरु रामदास महाराज ने वरते, 30 रागां विच उन्हां दे शब्द आए और एडी महंगी बाणी आई। अणजान पाठी गुरु रामदास पातशाह दी बाणी दा पाठ नहीं शुद्ध कर सकता। एडियां लंबियां लंबियां तुकां ने 2-2 3-3 बार विश्राम लाउणा पैंदा। जिन्हें संथ्या कीती होएगी वही पढ़ सकेगा। एडी महंगी, जिन्हों लोग अनपढ़ कहंदे सन। 4 पोथियां तैयार होईयां। गुरता गद्दी ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह नूं अज बिठाउण लगे। जिथे बेअंत बख्शिशां नाल नवाजिया उत्थे गुरु रामदास पातशाह ने 4 बाणी दियां पोथियां गुरु अर्जन देव पातशाह की झोली विच पा दित्तियां। आप ज्योति जो समा गए। समा धन गुरु अर्जन देव पातशाह का गुरता गद्दी वाला शुरू होया। 18 साल की उम्र च गुरता गद्दी ते बैठदे आ। 43 साल तक जीवन काल विच रहिंदे। 25 साल गुरता गद्दी ते रहे गुरु अर्जन देव पातशाह। नाल नाल अपनी बाणी उचार रहे आ। धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आ सुखमनी साहब की दात गुरु अर्जन साहब ने दी और इक्को वेले उचारण की। जिवें जपजी साहब की बाणी है ना, ये धन गुरु नानक देव पातशाह के पूरे जीवन में उचारी हुई बाणी है। एक समय और एक थां ते उचारी हुई नहीं, वक्को वक् थावां ते पौड़ियां उचारण कीतियां ते इहदा जिहड़ा संग्रह एकत्रता करतारपुर साहब की धरती ते कीती गई। लेकिन गुरु अर्जन साहब सुखमनी साहब की एडी लमेरी बाणी उचारदे इक्को समय ते इक्को जगह। 12 माह की बाणी उचारदे इक्को समय ते इक्को जगह। बड़ियां बाणियां ने जड़ियां लमेरियां ने पर इक्को समय इक्को जगह उचारियां। 2312 शब्द धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे एकत्र हो गए। 2312 शब्द एक उन्हां दी पोथी बन गई। हुण 5 पोथियां तैयार हो गईयां। 5 पोथियां और धन गुरु नानक देव पातशाह जदों 4 उदासियां दौरान विचर रहे ने, महाराज बाबा फरीद साहब की ठेरी ते गए। शेख ब्रह्म बैठा है। इधरों गुरु नानक देव पातशाह अमृत वेले श्लोक उचारदे आ, उधरों अगला श्लोक शेख ब्रह्म उचारदा है। महाराज कहंदे आ, वेख मरदानिया किवें गुरमत दे सिद्धांतां नाल आ शब्द मेल खांदे आ। जेड़ा ये शब्द पढ़ रहा आपां नूं मिलना चाहिदा उहनूं। बाबा फरीद साहब की ठेरी ते गए। उन्हां दे 10वीं थां ते गद्दी ते शेख ब्रह्म बैठा है। वार्तालाप बचन विलास होए। बाबा फरीद साहब दे सारे श्लोक सुने। धन गुरु नानक देव पातशाह ने हाथ जोड़ के कहा, शेख ब्रह्म जीओ ये रब्बी बोल तुसी मैनू दे दो, ये बोल मैनू दे दो। तुहाडे कोले किते तुहाडे कोल ही ना पे रह जाण। ये बोल मैं इहो जी थां ते टकाउणे ने। ये कल्ले अज बाबा फरीद साहब दे अस्थान ते नहीं, ये पूरी दुनिया दा जीवन भला करनगे। ये वड्डा परोपकार है गुरु नानक साहब दा। बाबा फरीद साहब दे बोल अज दे नहीं। जदों गुरु नानक साहब वो बोल लैण गया, उन्हां दे वो बोल लैण तो 300 साल पहलां दे बोल उत्थे पिया। किसी नूं पता ही नहीं, किसी नूं पता ही नहीं। ना किसी ने बोलां नूं संसार दे सामने लिआंदा, ना लिआउण दी जरूरत समझी। गुरु नानक साहब कहंदे ये बचन मैनू दिओ, ये मैं संसार दे कोल लैके जाने आ, पूरे ब्रह्मंड विच लैके जाने आ। मनुखता दे भले वास्ते ये शब्द मैं इहो जी थां ते विराजमान करने आ, जेड़ा मर्जी आके इन्हां शब्दां नूं पढ़े सुने गावे उहदा भला हो जाएगा। तां बंगाल दे विच गए। भगत जयदेव साहब का पता वो सुनिया, पढ़िया, विचारिया। वो शब्द भी महाराज ने ले लिया। 300 साल उन्होंने भी पे हो गए।
महाराज कहते शब्द भी मैनू दिओ, मैं ये दुनिया में लैके जाना है। तो भगत रविदास जी कोल भगत कबीर साहब नूं महाराज मिले बनारस। एक हफ्ते के करीब पातशाह उत्थे रहिंदे आ। किसी ने कहा 7 दिन 7 रातां भगत रविदास जी के घर में महाराज रहे आ। किहो जी झोंपड़ी में रहिंदे आपां नूं पता है। 7 दिन 7 रातां। किसी ने कहा 1 दिन 1 रात चलो रहे ने। मैं इत्थे भी बेनती करदियां कोई जात पात का फर्क नहीं रखिया। उतों के लोग नफरत करते हैं जात करके। गुरु नानक साहब उहदे घर में रहिंदे आ, प्रशादा भी छकिया होएगा, जल पानी छकिया होएगा, किवें परिवार की तरह रहे होणगे। सिर्फ मेन मकसद की है, तुहाडे बोल मैं मनुखता तक लैके जाने आ, तुहाडे बोल मैनू दे दिओ। भगत रविदास भगत कबीर जी हो, जिवें ये लोग उच्चियां जातां वाले जाती तौर ते तुहाडा नुकसान करन लई सोचदे रहिंदे आ, तुहानूं हर वेले मारन दे यतन करदे रहिंदे आ, किते ऐसा ना होवे तुहाडे शरीर दे नाल खत्म करदे करदे तुहाडे बोल भी खत्म हो जाण। ऐसा ना होवे। ये बोल मैनू दे दिओ ताकि बोलना ये बोल भी अमर हो जाने आ, बोलना करके तुसी भी अमर हो जाना। 40 शब्द और 1 श्लोक, जोड़ा 1 श्लोक असीं पढ़दे आ वो भगत कबीर साहब दा उचारिया होया। 40 शब्द भगत रविदास जी दे और भगत कबीर साहब के श्लोक के शब्द धन गुरु नानक देव पातशाह ने वो अपने कोल दर्ज किए। होर बड़े भगतां दी बाणी दर्ज, एक पोथी भगत बाणी दी 775 शब्द बन गए टोटल। 6 पोथियां ने इस वेले गुरु अर्जन देव पातशाह कोल। हुण इत्थे दिक्कत की आ रही है, गुरु ग्रंथ साहब की संपादना क्यों करनी पई, ये सवाल है अज वड्डा। हुण तक की सी, धन गुरु नानक देव पातशाह बेदी ने गुरता गद्दी का जदों विरोध तकरार जां अपना हक जमाया, बाबा श्री चंद साहब ने गुरता गद्दी बदल के धन गुरु अंगद देव पातशाह कोल चले गए। त्रेण ने बेदियां विचों निकल के गद्दी त्रेणा कोल चले गई। त्रेणा दे विच गुरता गद्दी की खिच्चोताण होण लगी, नाल दी नाल गद्दी बदल के भल्लियां कोल गुरु अमरदास साहब कोल चले गई। भल्लियां विच गद्दी दी बाबा मोहन ते बाबा मोहरी जी गुरता गद्दी लई यतनशील होण लगे। गुरता गद्दी सानू मिले, साडे पिता दी विरासत है। गुरता गद्दी बदल के सोटियां कोल चले गई। हुण सोटियां कोल ही 10वें पातशाह तक ये गद्दी रहनी आ। बेदी एक जामा बेदियां कोल, एक जामा त्रिहणा कोल, एक जामा भल्लिया कोल, और गुरु रामदास तो लैके चली पीढ़ी सोटियां रूप दिखावण वारो वारी। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दा गुरता गद्दी जिहड़ी है वो सोटियां कोल रही। हुण इत्थे जिहड़ी दिक्कत आउण लगी है, वड्डी मुश्किल ये बन लगी है। इस तो पहला एक भाई हंधाल होया गुरु रामदास पातशाह दा सिख, उहदे 2 पुत ने विधि चंद ते बाला चंद। इन्हां ने ये बड़े गलत कामां विच, कुकर्मां विच, पतत पुणियां वल, विकारां दे विच इन्ने उलझ गए। ये बाणी दी तर्ज ते कच्ची बाणी उचार ला। इहनूं बड़ा एहसास कराया कि भाई तुहाडे पिता ने गुरु घर विच बड़ी सेवा कीती है। उन्हां नूं सिੱਖੀ प्रचार दी एक मंजी गुरु अमरदास महाराज ने बख्शी। गुरु रामदास दा बड़ा प्यारा सिख सी भाई हंधाल। भाई हंधाल बड़ा प्यारा सिख सी ते तुसी किहड़े राह पै गए। पर पूजा दा धान मत मार दिंदा है, ये अखां तो अन्ना ते कन्नां तो बुला कर दिंदा, किसी दी कोई गल नहीं सुनदे। ते कच्ची बाणी शब्द जिहड़ा उचार रहे ने, इत्थे नाल नाल शब्द लिखिया जा रहा है। इस वेले जिहड़ी दिक्कत आ वो ये आई, पिरथी चंद आप गुरु बन के बैठ गया। इधर गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु ने हुण शरीरक तौर ते भी 2 गद्दियां सोटियां कोली ने भी। गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु अर्जन प्रताखा रहा, उहदे बराबर पिरथी चंद ने गद्दी ला के क्या मैं गुरु हाँ। चलो शरीर गुरु की गल भी आई, नाल हुण शब्द की नकल तर्ज ते शब्द भी नकल इन्हां लिआंदा, शब्द भी पैरल नकली खड़ा कर दिता है। भाई हंधाल दी औलाद और नकली शब्द उचार रही है। ते इहदा जिहड़ा पिरथी चंद दा पुत मेहरबान, पिरथी चंद कहंदा वेख, मेहरबान कह रहा पिरथी चंद नूं, पिता जी हरमंदर साहब आपां लग बना के वेख लिया, सरोवर उवें दा आपां लग बना लिया, गुरु घर दे कीर्तनीय सत्ता बलवंड आपां खरीद लए, आपां सारा कुछ गुरु घर वाला कर लिया, पर तुहाडे पिछे संगत क्यों नहीं लग रही। चलो उन्हें सच बोलिया। पिरथी चंद कहंदा कारण यह है कि आपां सारा कुछ जो गुरु ने हरमंदर साहब बनाया, सरोवर बाणी की सारा कुछ कर लिया, मेरे च वड्डी कमी यह है कि मैं बाणी नहीं उचार सकता, मैनू बाणी नहीं उचारनी आउंदी, बस ऐदी करके संगत मेरे पिछे नहीं आ। मेहरबान कहंदा ये काम मैं कर दियांगा, इसदी चिंता ना करो, ये काम मैं कर दियांगा। हुण मेहरबान जिहड़ा है वो अपनी इस तर्ज ते कहंदे ने
ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੋਸਤ ਅਫੀਮ, ਆ ਭੰਗ, ਮਦ ਉਤਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ खुश होई भी इन्ना सोहना कीर्तन बाणी दा। महाराज कहते मेरे हुंदियां तां अज नहीं संगत नूं पता लग रहा भी एक बाणी कच्ची है कि पक्की है। ये मेहरबान दियां कवितावां तो खुश हुई जा, मेरे तो बाद की होएगा, मेरे तो बाद की होएगा। फिर सतगुरु पातशाह दे एक दिन मन च ख्याल आया, एक दिवस प्रभ प्रातः काल, दया भय प्रभ दीन दयाल, जे मन उपजी प्रगट्यो जग पंथ। मन विच ख्याल आया भी गुरु नानक दा पंथ दुनिया दे कोने कोने च फैल गया है। एक शरीर सारियां थावां ते सारियां नूं किवें मिल सकदा है? एक शरीर सारे इक्को वेले सारियां नूं दर्शन किवें दे सकदा है? तां भाई गुरदास को आग्या करी तेह कारण कीजै अब ग्रंथ। ये कारण वड्डा सी कि मैं हुण एक ग्रंथ तैयार करांगा, दुनिया दे कोने कोने विच वसदे सिख उहदे दर्शन भी करनगे ते कौम दी अगवाई भी कर सकेगा। जे गुरु साहब अज अमृतसर दी धरती ते ही हुंदे ते दूर दूर बैठे सिखां ने दर्शन किवें करने सी? अज गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश इत्थे भी, अमरीका कनेडा विच भी है, दुनिया के सारे मुल्कों जिथे जिथे सिख वसदे आ, अज धन गुरु ग्रंथ साहब सारियां नूं नवाज रहे हैं। जे कल्ले शरीर की गल हुंदी ते एडे इन्नी संगत नूं किवें देहधारियां दे जिन्हां ने गुरु देहधारी बनाया उन्हां नूं पुछ के वेखो, उन्हां नूं फिर फोटोआं नाल ही डंग लाउणा पैंदा, क्योंकि उन्होंने जां तां गुरु कोल चल के आना पेगा, जां उन्हां दा गुरु उन्होंने दर्शन देण जावे। साडे किड्डे वड्डे भाग आ, सिख दुनिया च किते भी जाके नवां वसे, नवीं वसों होवे, नवीं आबादी होवे, अपना घर बाद च बनाउंदा है। पहला निशान साहब ते गुरु घर पहला लाउंदा है। निशान साहब जाके पहला लाउंदा है भी मेरे गुरु का घर पहला बनना चाहिए, साडा तां बनदा रहेगा, गुरु ग्रंथ साहब बिना साडा नहीं सरना। अज दुनिया के कोने कोने ते अज सिख धर्म के एक केसरी निशान झुल रहे हैं। तब महाराज साहब ने भाई गुरदास को आज्ञा करी, सब करे एकत्र बानीए करी, अर बानी भगतन की सब मेलो साची राखो। झूठी पेलो भगतां दी बाणी, भट्टां दी बाणी, गुरुआं दी बाणी सारी एकत्र करो, सच्ची रख लो, झूठी कढ़ दो। तो महाराज साहब ने फिर ये सारी व्योंतबंदी बना के भाई गुरदास साहब नूं आग्या की, रामसर सरोवर का किनारा चुनिया गया। हुण सिख एकत्र होकर पूछ रहा पातशाह की करन लगे हो? महाराज कहंदे एक ग्रंथ तैयार कर लग्या जिहदे विच सारे गुरुआं दी बाणी, सारे भगतां दी बाणी, सारे भट्टां दी बाणी ये एकत्र करके एक ग्रंथ तैयार होएगा। पातशाह फिर तुसीं कहंदे हले तां मैं हाँ, कदे समा आएगा, 5 जामे हो गए, 5 रह गए ने, 10वें जामे तो बाद तुहानूं इसे ग्रंथ दे लड़ ला के जाना है। इसे ग्रंथ ने और तुहानूं इहो जे गुरु दे लड़ ला जांगे जिन्हें फिर दुनिया रहिंदी तक ओनूं कोई तख्त तो नहीं लाएगा, वो जुगो जुग अटल तख्त ते बैठ के कौम दी अगवाई करेगा। किसी ने 3 साल, किसी ने 5 साल किया, किसी ने 4 किया। गुरु ग्रंथ साहब की लिखाई नूं लगे भाई गुरदास साहब ने लिखा, भाई बन्नो जी कलमा कट दिया, शाही तैयार कर दिया, ते महाराज एक एक अंग की संभाल आप कर दिया। कश्मीर तो कागज मंगाया गया और जिहड़ा भी अंग लिखिया जाता अकाल तख्त साहब के अंदर कोठा साहब है, कोठा साहब के विचों बिराजमान शाम नूं कीता जाता है। ते सन 1604 भादरों सुदी एकम ये दिन आया। सन 1604 भादरों सुदी एकम वाले दिन जदों ग्रंथ साहब तैयार होया, सचखंड श्री हरमंदर साहब पहला तैयार 1688 विच, 1588 विच हरमंदर साहब की नींह रखी गई, 1577 विच अमृतसर साहब की नींह रखी गई सी, सन 1604 आया हुण गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होण लग्या।
हले ग्रंथ साहब है, आदि ग्रंथ साहब है। पहला नाम पोथी साहब, दूजा नाम आदि ग्रंथ साहब, तीजा नाम गुरु ग्रंथ साहब का है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। तीन बीड़ा प्रचलित ने सिख कौम के अंदर, करतारपुर वाली बीड़, भाई बन्नो जी वाली बीड़, दमदमा साहब वाली बीड़, तिन्ने ही अज साडे कोल नहीं। और तीन नाम गुरु ग्रंथ साहब दे ने। अज जिहड़ा अज नाम है वो आदि श्री गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज गए। अज पहली दफ़ा महाराज साहब जिहड़ा ये बाणी का संग्रह तैयार होया, 975 के करीब सारे अंग तैयार होए। 974 जिहड़े प्रिंटड छापियां तो पहला अंगां की जिहड़ी गिणती वो वधदी घटदी रही। 1430 हुण एक गिणती है जिहड़ी वो तय हो चुकी है। हुण प्रिंटड बीड़ां दी इक्को जी गिणती है। तो महाराज साहब ने एक वड्डा परोपकार कौम ते कीता। मैं बड़ियां गल्लां छड्ड के सिर्फ अज प्रकाश की गल करन लग्या, क्योंकि इतिहास बड़ा लंमेरा है। धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का इतिहास कई दिनों का समा चाहिए। अज शाम का वक्त है, सारी संगत नूं हुक्मनामे भेज के बुलाया गया। धन गुरु अर्जन देव पातशाह अज सारी रात सुते नहीं। अज प्रकाश होना जिहड़ी रात लंघ के गई। भादरों सुदी एकम सन 1604 नूं प्रकाश जिहड़ी उस तो पहली रात है। सारी रात सुते नहीं, संगत आराम कर रही है। वेड़े दे विच गर्मी दे दिन ने, कोई कितों आया कोई कितों आया, थके खारे सिख आराम की अवस्था विच ने। धन गुरु अर्जन देव पातशाह नूं अज नींद नहीं आ रही। सारी संगत विच गेड़ा दे रहे ने। अकाल पुरख नाल गल्लां कर रहा, परमात्मा देख तू मैनू कागज मंगाउण वाला भी सेवक दिता, मैनू शाही तैयार करने वाला सिख दिता, मैनू गुरु ग्रंथ साहब का एक एक अखर लिखण वाला सिख दिता। मैनू अज नींद नहीं आ रही। कल इस ग्रंथ का प्रकाश करना है, मैनू प्रकाश करने वाला सिख भी दे दिओ। इहदी ताबिया किने बैठना? जे मैं ही ताबिया बैठ गया, कल सिख ये ना समझ लैण ताबिया बैठण वाला ही गुरु हुंदा है, ये ना सिख समझ लैण। और बाणी का इन्ना अदब जदों दे गुरु ग्रंथ साहब के अंग लिखे जान लगे सन, धन गुरु अर्जन देव पातशाह उस दिन तो अपने महलों च नहीं सी गए ते मंजे ते आसन ला के आराम नहीं सी कीता, भुंजे चादर विछा के आराम करते रहे। अज भी कोठा साहब वेखियो तुसीं अकाल तख्त साहब के अंदर, सचखंड के पलंग थले चिट्टी चादर अज भी विछी गुरु अर्जन देव पातशाह की याद में है। महाराज उस दिन तो थले भुंजे आसन ला के सौंदे रहे आ। ते अज थोड़ा जा मॉडर्न युग है। अज सिख ताबिया विच महाराज दी कुर्सियां ते डाके भी बैठ जाते हैं, पर बाणी का अदब गुरु अर्जन साहब तो सिखो। चंगे भले तंदुरुस्त भी कपड़े इहो जे पाया, चौंकड़ा वजदा नहीं, कुर्सियां ते बैठे आ, गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया च बैठे आ, दरबार साहब च बैठे आ। पर गुरु अर्जन देव पातशाह सत्कार विच उस दिन तो बराबर आसन ला के नहीं सी सुते, पुंजे आसन ला के सौंदे आ। ते अज सारी रात चैन नहीं। महाराज साहब संगत च फिर रहा, रब अगे अरदास वार वार हो रही है। याद रखियो, अरदास करदियां करदियां परमात्मा नाल गल्लां करदियां अज एक इहो जे शरीर कोल गुरु अर्जन देव पातशाह दे कदम रुके आके, जिहदा चंद्रमा दी चाननी विच शिंगरफ दी तरह लाल सुरख चेहरा चमक रहा है। 98 साल दी उम्र है, चिट्टा दुध वर्गा दड़ है, चिट्टा खद्दर दा दस्तारा सजाया होया है, चिट्टा खद्दर दा चोला पाया होया है, खब्बी बखी हेठां है, सज्जी बखी ऊपर, एक पासे एक परने प्या है, हाथ विच एक लंबी डांग है। पता नहीं किस रंग विच ए बुजुर्ग बाबा सुता पिया है। गुरु अर्जन देव पातशाह दे कदम रुके, नाल ही परमात्मा दा शुकराना कीता। अकाल पुरख कोटान कोट शुकर, मैनू गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश करन वाला भी लभ गया। अज भादरों सुदी एकम 1604 का दिन चढ़िया। संगतां कोठा साहब दे कोल इकट्ठियां हो गईयां, बड़ियां तैयारियां कीतियां होणगियां। अज पहली बार हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहब दे आउण तो पहलां उन्होंने जिथे प्रकाश किया जाना वो इमारत तैयार की गई, वो घर तैयार किया गया। हरमंदर साहब किसी गुर व्यक्ति का प्रकाश नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब गुरु शब्द का प्रकाश है। अज सारी संगत आले दुआले खड़ी, ये 98 साल का बाबा सब तो पिछे खड़ा भी अज मेरी की लोड़ पैनी आ। 98 साल दे नूं कौन अगे लाउंदा है? पर अज गुरु अर्जन साहब ने आवाज़ मारी, बाबा बुढ़ा जीओ अज पिछे खड़न का वक्त नहीं, अज अगे आओ, अज तुसी अगे आके खड़ो, अज पिछे नहीं। बाबा बुढ़ा अपने शरीर नूं संभालदा आया, पुछया महाराज की हुक्म? महाराज कहंदे ने आ डांग साइड ते रखो, सोटा साइड ते रखो, हथ धोवो ते एक गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तुहाडे सीस ते टकाया जाएगा।
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਰੂਪ ਟਿਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਰੋਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਸਨ 1604 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮਝਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਵਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਬ ਸੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਖੋਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਇਓ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ,
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਔਰ ਪੰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ